Good morning. Today's lecture intermolecular forces, same chapter, mechanical properties of fluids. So in intermolecular forces, in case of solid, liquid or gaseous, for solid, molecules are strongly attract to each other compared to the liquid. Okay. So this is the molecule of the solids, are they crowded, closely compact compared to liquid. Liquid molecules are widely separated, and in gas molecule they have large volume. Okay. So solid, liquid and gases, out of three, the intermolecular forces of attraction between two molecules. Force of attraction between any two molecule of substances are called as intermolecular forces. Force of attraction between two molecule of substances. Force of attraction between two molecule of substances called as intermolecular forces. Okay. It is maximum in solid. It is strong in solid. सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे स्ट्रांग होता है, एंड मिनिमम इन गैसियस. मिनिमम दैट इज वीक इन गैस, वीक इन गैसेस. Now, what is the types of intermolecular forces? So, there are two types of intermolecular forces. Number one, उसमें पहला टाइप है कोहेजिव फोर्स. कोहेजिव फोर्स, इसे फोर्स ऑफ कोहेजन भी कहा जाता है, कोहेजिव फोर्स. तो क्या होता है कोहेजिव फोर्स? देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन any two molecule of same substance. Force of attraction between any two molecule of same substance. Same substance मतलब ये ग्लास वेसल है, इसमें हमने वाटर को पोर किया. दिस इज द वाटर. ओके. सो वन वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स अनदर वाटर मॉलिक्यूल. ये ए वाटर का मॉलिक्यूल है, ये बी भी वाटर का मॉलिक्यूल है. सो ए टू बी अट्रैक्शन जो होगा सेम सब्सटेंस, उसे कहेंगे हम कोहेजिव फोर्स. ओके. वन इंक मॉलिक्यूल, ink in a pen, one ink molecule attracts second ink molecule, ink to ink, that is cohesive force, same substance. Clear? Second, दूसरा होता है adhesive force. Adhesive force. So in adhesive force, opposite substance like different substance, बाकी सेंटेंस सेम आएगा. देखो डेफिनेशन, force of attraction between two molecule of different substances. Two molecule of different substances. That is called as adhesive force. Like glass and water. So this is the glass molecule. So one glass molecule attract this vessel, glass molecule. Water, liquid. Liquid molecule is solid molecule. वाटर कौन है? लिक्विड. ग्लास इज अ सॉलिड. ये हो गए डिफरेंट सब्सटेंसेस. ये पेन में इंक है और ये बोर्ड है. बोर्ड मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स विद इंक मॉलिक्यूल और इंक मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स विद बोर्ड मॉलिक्यूल. दैट्स व्हाई वी राइट, वी ड्रॉ द डायग्राम. एनीथिंग वी हैव टू रिटन ऑन द बोर्ड using, that is the adhesive forces. Okay. So these are the types of forces. Now, both are short range forces. Both are very short range force. ये दोनों जो है वो शॉर्ट रेंज है. इनका रेंज है 10⁻⁹ मीटर. वेरी वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस. बोथ आर very short range forces. 10⁻⁹, that is nanometers. Okay. Now, after that, what is the range of
अभी शॉर्ट रेंज, रेंज तो आपको पता है, तो रेंज मतलब इट इज अ डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल। तो तीसरा नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा मॉलिक्यूलर रेंज। व्हाट इज मॉलिक्यूलर रेंज? इसे रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी कहा जाता है, और सिंपली मॉलिक्यूलर रेंज, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल, maximum distance between two molecule for which intermolecular forces are effective. Intermolecular forces are effective. Effective means applicable. तो फोर्सेस जो है अप्लाई होते हैं, दैट डिस्टेंस, दैट मैक्सिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर रेंज। अब ये देखो यहाँ पे एक लिक्विड है, दिस इज अ वेसल फिल्ड विथ लिक्विड, दिस आर द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड। तो ये जो ए मॉलिक्यूल है ये बी को अट्रैक्ट करेगा अगर डिस्टेंस रेंज में है, तो रेंज में मतलब 10⁻⁹। तो ये जो रेंज हमने बताया, दिस रेंज इज 10⁻⁹, it is in solid and liquid. This is the range of intermolecular forces for solid material and liquid material. Okay, तो between A and B अगर रेंज 10⁻⁹ और उससे कम है, less than or equal to 10⁻⁹, okay, less than or equal to 10⁻⁹, then the forces is applicable between two molecule. तो वो जो डिस्टेंस होता है उसे कहा जाता है मॉलिक्यूलर रेंज। रिपीट अगेन, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल फॉर विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इफेक्टिव और अप्लाइड, कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर रेंज। रेंज के बाद है अनदर डेफिनेशन, that is called as sphere of influence. Sphere of influence. Sphere of influence. देखो अभी spherical shape, influence means effect, किसका इफेक्ट? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इफेक्ट बिटवीन टू मॉलिक्यूल। अगेन देर इज अ वेसल, अभी सेम डायग्राम या फिर सेपरेट निकाल लो। अगेन देर इज अ लिक्विड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ दैट लिक्विड्स इन द वेसल। अभी यहाँ पे ए जो मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल एक्सर्ट फोर्स टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल। इसके रेंज में जितने भी मॉलिक्यूल होंगे विद इन अ लिक्विड, उसके ऊपर वो फोर्स अप्लाई करेगा। तो नेबरिंग मॉलिक्यूल जो है, अभी ये बी है, इधर सी है, इधर डी है, इधर ई है, इधर, ये जो नेबरिंग मॉलिक्यूल, दैट मॉलिक्यूल आल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑन दैट मॉलिक्यूल ए। तो उनका एक स्फीयर फॉर्म होता है, वो इमेजिनरी, क्योंकि हमने वेसल को अगर डिस्प्लेस किया या फिर मूव किया तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो स्फीयर विल बी चेंजेस, इसलिए इसे इमेजिनरी स्फीयर कहा गया है, इमेजिनरी। ओके, तो देखो डेफिनेशन, व्हाट इज sphere of influence? Imaginary sphere draw around given molecule as a center. Given molecule as a center, having radius, उस स्फीयर का जो रेडियस होगा, having radius is equal to its molecular range. Having radius is equal to its molecular range is called sphere of influence. इसे कहा जाता है sphere of influence. Okay. Imaginary sphere draw around molecule as a center,
हैविंग रेडियस, ये जो रेडियस है, दिस रेडियस इक्वल टू रेंज, मॉलिक्यूलर रेंज. सो नंबर ऑफ स्पेयर इज फॉर्म इन द, जितने मॉलिक्यूल होंगे उतने उनके स्पेयर फॉर्म होते हैं इस टाइप में. दिस आर द स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एवरी मॉलिक्यूल इन द liquid. This is A molecule with their sphere, this is B molecule with their sphere, C, D, E, and they have range equal to the radius. Okay, because ये range में neighboring में दूसरे molecule होते हैं, तो they are exerting force on each other. So उसे कहा जाता है sphere of influence. So every substance like liquid, every liquid or every gaseous are confirm or at rest with obtaining their sphere of influence. Okay, this is the concept of sphere of influence. Now next, after sphere of influence there is a concept of surface tension. What is the phenomena of surface tension? कंसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन, इसे शॉर्टकट एस डॉट टी भी कहा जाता है. सरफेस टेंशन सिंबल इसका कैपिटल टी. सरफेस के ऊपर टेंशन है इसलिए उसे सरफेस टेंशन. सरफेस किसका है? लिक्विड का. एनी सरफेस ऑफ लिक्विड. सी इन द डायग्राम. अगेन देयर इज अ वेसल filled with liquid, we say it is water. Okay, so this is the free surface of liquid. Free surface. तो free surface का मतलब क्या होता है? A surface which is in contact with air. A surface which is in contact with air. That is known as free surface of liquid. और ये फ्री सरफेस के ऊपर अगर ये लेयर है, टॉप का लेयर है, यहाँ से अगर हम रेंज तक गए, रेंज मतलब दैट इज 10⁻⁹ मीटर तक, तो आपको नेबरिंग मॉलिक्यूल मिलेंगे दूसरे कि जिनमें अट्रैक्टिव फोर्स है. तो ये जो थिकनेस बना है अभी, दिस लेयर, उसे फिल्म कहा जाता है, सरफेस फिल्म. दिस इज द सरफेस फिल्म. सरफेस फिल्म. Small layer, a thin layer of liquid, on its surface having thickness equal to its molecular range. Thin layer of liquid on surface having thickness equal to molecular range. तो ये जो रेंज तक जाएंगे आप, तो ये जो थिकनेस बना है पूरा टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस फिल्म. ओके, और जब आप कोई ऑब्जेक्ट रिलीज करते हो, एनी ऑब्जेक्ट वी ड्रॉप इन वाटर, तो ये फिल्म ब्रेक होके ऑब्जेक्ट ऐसा नीचे आता है. सो वी गेट स्मॉल नॉइज. अब एक स्मॉल साउंड सुनाई देता है. वी ड्रॉप टेबल और स्टोन और एनी ऑब्जेक्ट इन वाटर, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, हायर डेंसिटी, दैट सिंक होना. सब्सटेंस इज सिंक इन अ लिक्विड, देन दैट सब्सटेंस ब्रेक द फिल्म. वो सरफेस फिल्म को ब्रेक करता है और नीचे चला जाता है. लेकिन लाइट वेट वाले ऑब्जेक्ट जो जिनकी डेंसिटी कम है, दे आर फ्लोटिंग इन द वाटर सरफेस, ऐसे वो फ्लोट होते हैं. मॉस्किटो के एक ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लेयर ऑफ सरफेस फिल्म. So that eggs are floating on the water. Small insect, water spider आपको पता है, they are walking on the free surface of liquid because of film. और ये film क्यों फॉर्म होता है? उसका रीजन है concept of surface tension. So what is the concept of surface tension? Surface tension क्या होता है? It is T equal to F by L. Simple है. Surface tension that is a force exerted by water molecule, नीचे से एयर मॉलिक्यूल ऊपर से. फोर्स एक्सर्टेड, कौन से फोर्स है वो? टेंजेंशियल, along the tangent of the surface. टेंजेंशियल फोर्स, देखो टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट
length to an imaginary line. Imaginary line. Draw normally. Normally means perpendicular on both sides of imaginary line. Draw on normally on both sides of liquid. तो ये वे बोथ साइड्स ऑफ लिक्विड का मतलब क्या है, लिक्विड टू लिक्विड और एयर टू लिक्विड, इधर भी साइड है इधर भी साइड है, दोनों तरफ से फोर्सेस अप्लाई होते हैं, इसीलिए उसे इमेजिनरी का है. इमेजिनरी लाइन ड्रॉ ऑन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. ड्रॉ ऑन बोथ साइड ऑफ लिक्विड और फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. Free surface of liquid. So this is called as surface tension. तो अभी यहाँ पे जो लाइन कैसे फॉर्म होती है, तो इस टाइप में होती है. ये सपोज सरफेस है, ये हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है, तो ये ऐसे मॉलिक्यूल, these are the molecule stay on the free surface. और ये देखो ये टेंजेंशियल फोर्स along the tangent. सरफेस को टेंजेंशियल, लेकिन लाइन को परपेंडिकुलर. ये जितने भी एरो दिख रहे हैं आपको, दिस आर कॉल्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. और ये लाइन का लेंथ है यल, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड यल. इसलिए फार्मूला है T इक्वल टू F बाय, दैट इज द फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन. फोर्स पर यूनिट लेंथ, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक्टिंग ऑन इमेजिनरी लाइन, एक्टिंग नॉर्मली ऑन इमेजिनरी लाइन ऑन free surface of liquid called as surface tension. तो T इक्वल टू F बाय F बेसिक फार्मूला है सरफेस टेंशन का. T इक्वल टू F बाय F. तो ऐसा यूनिट क्या आएगा इसका, ऐसा यूनिट आएगा, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, लेंथ का है मीटर, सीजीएस में क्या आएगा डाइन पर सेंटीमीटर. ओके. और अनदर एक्स्ट्रा एडिशनल या फिर और में आप ऐसा यूनिट लिख सकते हैं इसका जूल पर मीटर स्क्वायर. अब ये जो यूनिट है डिपेंड्स अपॉन सरफेस एनर्जी, बिकॉज सरफेस टेंशन होता है सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया. आगे के कंसेप्ट में हमें वो एक्सप्लेन करना है. तो अभी आपको यूनिट खाली याद रखना होगा, जूल पर मीटर स्क्वायर भी होता है. क्लियर. ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट, ये इन टर्म्स ऑफ एनर्जी में आएगा. ओके. नाउ डायमेंशन, इसका जो डायमेंशन आएगा फोर्स बाय लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ. फोर्स का डायमेंशन क्या है, m1 l1 t-2 अपॉन लेंथ. लेंथ का क्या आएगा l1 कैंसल. सो फाइनल डायमेंशन m1 l0 t-2. सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन. क्लियर. So this is about definition, units and dimension of concept surface tension.